Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। गुस्सा कम तो नहीं हुआ है। क्यों गुस्सा है? गुस्सा है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी का लैप्स हो गया है एंड इतना डेंजरस पोजीशन था। कल से सभी लोग इसके लिए बहुत ज्यादा नाराज है एंड आज मेरे साथ पैनलिस्ट है सॉरी मतलब उनको हम लोग उनकी जो ट्विटर आईडी है वो बेसुरा तानसेन है, वैसे समीर है, हार्डकोर मोदी भक्त, रणदीप सिसोदिया जी जो कि ऑथर है जिन्होंने मोदी जी के बारे में बुक लिखा है एंड ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सुरेंद्र टपुरिया जी, एक्स एमपी। उनकी जो इन डेप्थ एनालिसिस होती है वो लिटरली हम लोगों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। एंड हमारे साथ कुछ ही देर में जयप्रकाश कलसूरिया वो ज्वाइन करेंगे कैलकाटा से। एंड आज हम लोगों का डिस्कशन यही है कि कल जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसके लिए हुआ, हु वाज रिस्पॉन्सिबल। यही सारे डिस्कशंस के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। एंड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन विल गो टू समीर। Sameer, can you tell me what exactly were your emotions when you saw that such a kind of security lapse has taken place? Ishari, you know me for a long time now. So kal jo incident hua, that was arguably one of the lowest point in our democracy in a long time. And इसके पीछे देखिए ईशादी, इफ यू अलाउ मी अ कपल ऑफ मिनट्स, मैं थोड़ा इलेबरेट करना चाहता हूँ। हम अक्सर गुस्से में ऑपोजिशन को ब्लेम करते हैं और वो वाजिब भी है, बिकॉज ऑपोजिशन इज नोन फॉर द डर्टी ट्रिक्स। लेकिन वी ऑल्सो हैव टू रियलाइज दैट we are in this game knowing that the opposition is going to resort to any tricks. So we have to be prepared ourselves. I would like to go on record saying that matlab iske pehle we have this government has given some of the boldest reforms, jaise article 370 ka abrogation hua hai, which is perhaps one of the biggest constitutional reforms since 47. राम मंदिर का वर्डिक्ट डिलीवर हुआ, उसके बाद सबने उसको पीसफुली वेलकम किया, ये बड़ी अचीवमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, एक्सटर्नल इंटरफियरेंसेस वर्चुअली जीरो हो गए अक्रॉस द बॉर्डर के इंकर्जन्स इन मेनलैंड, इन अर्बन सेंटर्स एंड ऑल दैट, जो हम मुंबई वगैरह में देखते थे। ये सारी क्रेडिटेबल अचीवमेंट्स है। But I've often been saying that something's missing since November 2019. Or coming back to yesterday's incident, see, I could be wrong, but it is not a one-off ad hoc incident that happened yesterday. Such a serious violation like the PM's security breach has to have certain amount of meticulous planning behind it. Also, it is not something that just transpired. This situation has been built up over 18 months. जो हम देख रहे हैं, जो बॉर्डर पे इतने महीनों से डेरा जमा के हजारों लोग बैठे थे, उसके बाद जो इन्होंने इंसिडेंट 26 जनवरी को किया था, then subsequently a lot of other anarchy has happened in that region, in that belt. Now, all this is calculated and takes a lot of resources in terms of money, manpower. Now, where is the money coming from? And if the money is flowing from places where it should not, isn't it the MHA responsibility to check the fund flow? Over so many months, 20 months, funds are coming unabated
to support and sponsor these protesters. I can guarantee you that most of these protesters have no problem with Modi ji or BJP or the government or the farm laws. But इनका पेट इतना भरा होगा पैसों से to protest. These are sponsored agitations. The real agitators are only 10% troublemakers who have infiltrated and are provoking everyone with the power of money. But ये आया कैसे? इसको रोका क्यों नहीं? Secondly, कल जो PM का कैवलकेड जाना था, उसको if there was, why was there no intel on this? And if there was intel, then why was the PM allowed to proceed on this thing? Who reports? Who do the agencies report to? Again, MHA. Thirdly, after it has happened, I understand people are, passing inane comments with emojis saying, "Lol, you don't expect the HMPM to tweet." अरे भाई, we don't expect HMPM to tweet their actions. हम लोग को भी थोड़ी समझ है, but हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि भाई इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जिस पोजीशन की वजह से बाकी सारे पोजीशंस एग्जिस्ट करते हैं. इट इज द पीएम एंड मोदी जी, बिकॉज ऑफ विच ऑल अदर्स अराउंड हिम एग्जिस्ट. ही इज द वन होल्डिंग इट टुगेदर. अगर उनके कैवलकेड को खतरा हुआ है, देयर इज अ सिक्योरिटी ब्रीच, द लीस्ट दैट कुड हैव बीन डन वाज द एरेंट डीजीपी हु वाज इन चार्ज ऑफ द एंटायर सिक्योरिटी कुड हैव बीन सस्पेंडेड पेंडिंग इंक्वायरी. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिसमिस कर लो, सस्पेंड तो कर ही सकते हैं. सो समवेयर मतलब इंटेंट नहीं दिख रहा था, इसलिए गुस्सा जायज था. हम बार बार ये नहीं कह सकते कि कोई युवराज बाहर जाके आएगा फिर ट्रबल होगा. अरे वो बाहर जा रहा है, ट्रबल होगा तो हमारे एजेंसीज क्या कर रहे हैं? I mean, every time we say the same thing और उसको RTs मिलते हैं हमको, हम खुश हो जाते हैं. But come on यार, are we so powerless that one guy goes abroad and comes back and sponsors agitations here? Where does the buck stop? I agree with whatever you have said. Sorry, I have interrupted you, Sameer. I just wanted to welcome Jaiprakash. Welcome JP. We call him JP. He's from Bengal, and he also has very, strong political acumen. Now, if you don't mind, Sameer, I'll come back to you. I want to ask Surinder Dada. Surinder Dada, इतनी लंबी political स्पैन है आपका, क्या आपने कभी इतना मतलब in what should I say, inept way of handling a situation, have you ever seen any government doing it the way the Punjab government has done it? कई बार तो इन दिनों जो चीजें हो रही हैं देख के लगता है कि कोई गवर्नमेंट है भी क्या. और मैं कल से जो कुछ लोगों से बात हुई है ओवर द फोन इन वेरियस सिटीज, उसे लगता हूं कि अपने बीजेपी के सपोर्टर्स के मन में भी गुस्सा और तकलीफ बहुत ज्यादा है इसी क्वेश्चन को लेके. लोग कहते हैं कि हमने क्यों दिया आपको 303, हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए. यदि ठीक है हमने आपको 303 नहीं दिए कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर भी तो बहुत करने की जगह है. ये माना कि पहले जिन चीजों की अपने बात करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ये कर दो, इसको पकड़ लो, ये कर दो, ये चीजों का एक आज हैंडीकेप मोदी जी को है जो अपने को मानना पड़ेगा कि पहले कांग्रेस की सरकारों में और खासकर इंदिरा जी के 15-16 वर्ष में ये प्रेसिडेंट रूल और ये सब चीजें इतनी ज्यादा मिसयूज हो गई थी कि मैटर्स उस वक्त कोर्ट में गए तो कुछ कोर्ट्स के बंधन आ गए. और अभी जुडिशरी से जो एक रकम का कन्फ्रंटेशन लगता है उसको देख के भी शायद डर लगता है कि आज करें और कल को कोर्ट उसको बाहर कर दे तो कैसा रहेगा. लोगों को एक ये भी एतराज है कि 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि कोई भी एक्शन लेना होता है तो मोदी जी इस तरह प्लान करते हैं या सरकार इस तरह प्लान करती है कि उसका कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए तो बचे रहें कि हमने तो कोर्ट के एक्शन से लिया, या कि उसमें कोई दोबारा कोर्ट में नहीं जाए. तो इन चीजों को लेके लोग कहते हैं कि ये ग्लव्स पहन के बैठे हो तो फिर अपने को मजबूत कैसे बोल रहे हो. एक
आज सुबह किसी ने मुझे कहा कि आप लोग ब्रीच की बात कर रहे हो, लेकिन हमें तो ये ब्रीच लगती नहीं। ये तो खुल्लम खुल्ला कांग्रेस की पंजाब सरकार ने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया है। आपको क्यों शर्म आती है बोलने के लिए? एक तरफ तो बात करते थे कि जहां और पार्टी पुटिंग करती है वहां भाजपा एकदम निठल्ले होकर शेर की तरह गरजती है, लेकिन यहाँ तो हम उल्टा ही देख रहे हैं कि भाजपा चुप बैठी रहती है। एक गाय का आंदोलन करपात्री जी ने किया 66 में, इंदिरा जी नई नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी। पार्लियामेंट हाउस के घेरे के अंदर 15 मिनट के अंदर गोलियां चला के 300 साधु संत मार दिए गए। और यहाँ आपके सामने लाल किले, जिसको अपने लोगों ने कैसी, नेहरू जी ने 47 में वहां झंडा टांग के प्रतिष्ठा दे दी कि हिंदुस्तान की इज्जत है तो लाल किला है, तो लाल किले में रिपब्लिक डे के दिन हुआ और देखते रहे। पहले कुछ दिनों में लोगों ने उसकी प्रशंसा की कि देखिए पुलिस जाती कुछ करती तो वापस झगड़ा होता और फैलता, लेकिन अब साल भर निकलने के बाद लोग ये कहते हैं कि शायद हो सकता है कि एक बार झगड़ा होकर चीजें खत्म हो गई होती, और झगड़ा बचाने के लिए गए तो छोटे छोटे झगड़े 12 महीने से हो रहे हैं। तो आप एक बीमारी का ऑपरेशन करके उसको निकालेंगे या उसको करेंगे? दादा सॉरी, हाँ मैं जी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर करूंगी एंड मैं चाहूंगी कि मेरे काउंटर मैंने ठीक किया कि नहीं किया वो रणदीप जी मुझे बताए। काउंटर ये है दादा कि द सिचुएशन इन पंजाब, सी अगर हम मैं जानती हूँ कि एक्शन लेना चाहिए, और मगर एक ये है कि दे वर प्लेइंग ऑन दिस वेरी कार्ड दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक सम एक्शन, एंड एक्शन लेने के वजह से क्या हो जाता था, जो एक पूरा का पूरा मतलब a group of people would have become even more anti-country, anti-nation, and can we afford to have that in our country? टोटली एंटी नेशन एंड नेशनल चीजें अगर होने लगे एंड अगर लोगों को लगे कि हम कट ऑफ हो जाएंगे, क्या उसको बचाना भी काम नहीं है? इंदिरा गांधी ने ब्रूट फोर्स यूज किया, यस वी नो। राजीव गांधी के टाइम में भी हमने देखा, आफ्टर इंदिरा गांधी डेथ क्या हुआ वो भी हमने देखा। मगर वही कहना है कि ब्रूट फोर्स इज दैट आंसर टू एवरीथिंग। कुछ लोग हैं, मैं जानती हूँ, कुछ लोग हैं मुझे बोलते हैं कि आप पैसिफिस्ट हो, मगर पैसिफिस्ट की बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बहुत बिगड़ जा रहा है एंड उसके लिए अगर कॉमन मैन को अगर सफर करना पड़े वो रीजन का, तो समझदारी से काम लेना, दैट इज व्हाट आई थिंक। रणदीप जी आप आइए, फिर आई विल गो बैक टू दादा एंड देन आई विल गो टू जेपी। नहीं, थैंक यू ईशा जी। आई थिंक जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। और जो दादा ने भी कहा, एक्चुअली दादा तो हम सबसे ज्यादा जानते हैं, बट जैसे आपने भी कहा कि इंदिरा गांधी के टाइम सारी एजेंसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वर कॉम्प्रोमाइज कंप्लीटली। वो चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो प्रेस है। प्रेस तो उस समय फ्रीडम ऑफ प्रेस था ही नहीं, प्रेस तो स्टेट की थी और कोर्ट्स भी स्टेट के ही थे। तो इट वाज बेसिकली इंदिरा गांधी वाज ऑल पावरफुल। आज की डेट में जब हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर हो चुकी है, जहाँ की सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंडिपेंडेंट हैं, तो चाहे वो कांग्रेस जो मर्जी बोलती रहे कि सब बॉडीज दे आर ऑल कॉम्प्रोमाइज, बट द फैक्ट इज कि आज की डेट में जितना स्वतंत्र मीडिया है उतना कभी नहीं रहा। आज की डेट में जितना स्वतंत्र आपका कोर्ट्स हैं वो कभी नहीं रहे, और आज की डेट में जितने स्वतंत्र ईसी है या और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो कभी नहीं रही। ऊपर से इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत जागरूक हो चुका है। तो आई थिंक ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ेंगी। और जो आपने बोला, अब आप देखिए कि पंजाब का एक स्पेसिफिक केस लेते हैं, और ये ऑब्वियसली ये फार्म लॉ से सब उत्पन्न हुआ है। और मोदी जी ने फार्म लॉ जो बनाए थे गरीब किसान को के हित में ये बनाए गए थे। अराउंड 85-90% ऑफ द पॉपुलेशन फार्मर बेस विच इज पुअर, उनके लिए बनाया गया था। अब पंजाब में जो रेस्ट ऑफ द 10-15%
rich farmer base is in Punjab. और वो जो है सब मलाई खाई जा रही थी, वो आड़तियों के साथ मिलके वो मलाई खाई जा रही थी, और वो जो सब पैसा जो बन रहा था उसके थ्रू वो अब बनना बंद होने वाला है। तो ये मोदी जी ने बहुत बड़ी आघात लगाई एक फार्मर बेस ऑफ पंजाब, which by the way drives everything in Punjab. So we must understand that, and that is why it is critical, and that is why it is, while it is a small set of people, ये जो base है around 10-15% से ज्यादा नहीं है पंजाब का, बट जो इनका वेट है वो अपने परसेंटेज से बहुत ज्यादा वेट है इनका। तो जो इनका जो बोलते हैं ना, the weight of the punch is much heavier, so वो सब मद्देनजर रखते हुए आई थिंक ये सेंसिटिव इशू है। अब नाउ पर ये भी बात सच है जो दादा ने बोला कि ऐसा हमने आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी देखा नहीं है जो ऐसा ब्रीच हुआ है, और ये आई एग्री इट इज नॉट अ ब्रीच, बिकॉज अगर आप देखिए ये सिर्फ पीएम की सिक्योरिटी ही ब्रीच नहीं हुई है, एक और क्या हुआ है, वो जो रैली होनी थी जिसपे लाखों कार्यकर्ता आपके बीजेपी के आ रहे थे, उनको रोक दिया गया, उनको रैली तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो मतलब ये पूरा एक संयोजित ढंग से ये हो रहा था कि किसी भी तरह से इस रैली को फेल करना है, वो खाली सीटों के फोटो लेके वो दिखाने हैं मीडिया में, और आज लुटेन मीडिया क्या कर रहा है, वो खाली सीटें दिखा रहा है, लेकिन अब वो वीडियो सब बाहर आ रहे हैं जिसमें कतारें हैं बसों की, और बीजेपी वर्कर्स के झंडे लेके जिनको रोक रखा था बॉर्डर पर, उसके हाईवे पे रोक रखा था, उन लोगों को आने नहीं दिया गया। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि ये ब्रीच नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, और इसको टैकल, और ये ऑब्वियसली इसलिए मैं भी मानता हूं कि इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए, लेकिन ये ऑफिशियल इंक्वायरी की हमें वेट करनी पड़ेगी, गिवन द फैक्ट दैट आज की डेट में कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट, लॉ एजेंसीज आर इंडिपेंडेंट। तो सरकार को थोड़ा बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। अगर ये जल्दबाजी में कदम उठा लिए गए विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी ऑफिशियल, बड़ी जल्दी कोर्ट ओवरटर्न कर देंगे डिसीजंस, और फिर किरकिरी सरकार की उड़ाई जाएगी। तो मेरा ये मानना है। रणदीप जी, सॉरी मैं फिर से इंटरप्ट कर रही हूँ। Dada, do you agree with what I said and Randeep ji said? We do agree that yes, we are all angry. We want action, but are we really wrong, Dada? We want action, but is the government prepared to take an action? मैं अगेन उसी चीज पर थोड़ा सा दूसरे ढंग से लौटता हूँ दीदी कि 2019 के इलेक्शन के बाद एक साल तक अप टू अगस्त सितंबर 2020 बहुत जबरदस्त काम हुआ। 370 गई, ट्रिपल तलाक का आया, जो इलेक्शन के बाद में काम हुए वो सब बिल्स पास हुए, और विकास का काम हो रहा था, वो फर्स्ट टर्म से ही हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। ऑपोजिशन को लगने लगा कि जिस स्पीड से काम अब हो रहा है हम आगे सक नहीं पाएंगे, और उस डेट के बाद से आप देखिए होगा सितंबर 2020 के बाद से ये ऑपोजिशन की जगह ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसी आने लगी, और ये जब आने लगी इसको सरकार हैंडल करने में विफल रही। ये मेरा कहने का मतलब है। अपने शाह जी के लिए कहते हैं इतने बड़े होम मिनिस्टर, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने जब 370 का भाषण दिया बड़े अच्छे लगे थे पार्लियामेंट में। उन्होंने वो इनकी गांधी परिवार के लोगों का सिक्योरिटी सिस्टम चेंज किया था, उस पर भाषण दिया था, बड़ा अच्छे लगे थे। तो भाषण तक तो ठीक थे, 370 किया वो भी बड़ा अच्छा था, जिस ढंग से निकाल के किया गया। कश्मीर के सब नेता थे कि जब तक कश्मीर असेंबली पास नहीं करेगी 370 जा ही नहीं सकता, लेकिन किस रास्ते से प्रेसिडेंट रूल करके किया, ये एक बहुत बड़ी ब्रेन की चीज है। इसको लोगों ने अभी तक भी बहुत लोग नहीं समझ पाए कि कैसा हुआ। उसके बाद होम मिनिस्टर ने कहा किस फील्ड में अपना दिखाया कि हाँ मैं सच में लौह पुरुष हूँ, होम मिनिस्टर हूँ।
सब जगह तो अपने पेंडिंग छोड़ देते हैं, सब जगह ये करते हैं। आप भी सोशल मीडिया पे हैं, आप देखते होंगे कितने लोग मजाक लेने लग गए हैं कि लोगों प्राइम का मिनिस्टर वर्किंग फॉर अ पीस नोबेल प्राइज। या तो इस लोगों का तरह की जब एक्चुअली ट्वीट्स आती हैं मुझे तो जो क्यों आ लगता रही है हैं? दादा, मुझे जो लगता है लोगों की ह्यूज एक्सपेक्टेशंस है एंड हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इसी के वजह से हम लोगों को लगता है कि व्हाई नॉट इमीडिएट, इंस्टेंट क्यों नहीं, एवरीथिंग शुड बी इंस्टेंट। आई विल नाउ आस्क एक सेकंड दीदी, यस दीदी एक सेकंड। बोलिए। एक्सपेक्टेशंस हैं, हम वो एक्सपेक्टेशन भी विकास के एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं। वो हो रहा है, लोग सेटिस्फाइड है, मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, आप भी हैं, सब लोग सेटिस्फाइड हैं। जो ऑपोजिशन के हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो दुखी हैं, तो उनका एक्शन दूसरा होता है। अपने लोग बड़े खुश हैं, अपना क्वेश्चन सरकार को उसको लेके नहीं है। लेकिन जब ऑपोजिशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो ये सरकार इतनी कमजोर क्यों बन जाती है कि कोई एक्शन नहीं लेते हैं? Why they are waiting for everything to टाइम पास हो जाएगी तो निकल जाएगा। 6 महीने लोग बैठे रहे दिल्ली बॉर्डर पे, किसी अखबार ने कुछ नहीं लिखा, और अभी 3 दिन पहले ट्रैफिक को बीजेपी ने दिल्ली में कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया था, कोई कुछ ट्रैफिक स्लो हो गई थी, उस पे टीवी हेडलाइंस देने लग गए थे ट्रैफिक स्लो डाउन इन दिल्ली। तो साल भर तक उनको सब हजारों लोग बैठे हुए दे सस्टेन्ड इट, और 2 घंटे में ट्रैफिक में कुछ बीजेपी के डेमोन्स्ट्रेशन से हो गया, उसको हेडलाइन बन जाती हैं। दादा एक्चुअली मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इकोसिस्टम है इट्स स्टिल स्ट्रांग। उसको इकोसिस्टम को तो मतलब इतना रूट्स उनका गहरा चला गया है कि तोड़ना मुश्किल हो रहा है। एंड मतलब अच्छे काम को भी हाईलाइट वो लोग नहीं कर रहे। आपके और मेरे जैसे लोग, जो हम लोग कॉमन पीपल है, हम ही लोग जाके बोल रहे हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि पूरा जो लुटियंस है, जो मीडिया है, हम देखते हैं वो लोग एंटी मोदी है, एंटी गवर्नमेंट है, क्योंकि उन लोगों के पास वो जो पहले जैसा वो शानो शौकत रही नहीं गई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जेपी को पूछूंगी। Okay, I think there is a connection issue. JP will be joining us. Before he joins, I want Sameer to have his say. Sameer, what do you think? मतलब हमारे there is opinion for and against. What would you like to? So I'm very happy to hear someone as senior as Surendra Dada say what he has said. और मेरे ख्याल से उनके सेंटिमेंट को आज काफी हद तक बीजेपी के जो मोदी जी के समर्थक रहे हैं वो सब सहमत है उनके व्यूज से। देखिए, पेशेंस, ट्रस्ट, ये सारी चीजें हैं, एंड मोदी जी की वजह से ही तो वी आर ऑल देयर। सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड वो जो गेम ऑफ वन अपमनशिप हो जाता है कि भाई आई एम अ ग्रेटर सपोर्टर देन यू आर, वो बंद होना चाहिए। बट दैट इज ओके, यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम कमेंटिंग। अभी मैंने जो कल रात को ट्वीट किया उसके ऊपर भी आई एम फेसिंग a lot of questions on it, but let's not forget that as I said earlier, everything else around us exists because we have this man as the prime minister today for so many years, no? आज हम बोल पा रहे हैं बिकॉज हमारी सरकार है और मोदी जी है वहां पे, है ना? तो एक्सपेक्टेशंस लोगों के रहना जायज है। अब्यूज इज नॉट एक्सेप्टेबल। calling people spineless वगैरह वगैरह is not right, but कल अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि एक छोटा सा टोकनिज्म भले कहो उसको, बट यदि एक डीजीपी का सस्पेंशन ऑर्डर कल इमीडिएटली आ जाता तो आई एम श्योर nobody would have, even in opposition would have been very cautious before opposing it, because it was clear that he has there was dereliction of duty and it could have been suspension pending inquiry. I agree with you. Both sides would have kept quiet. We do not expect the home minister to announce what he is doing या उनके जो internal discussions है. Nobody needs to be privy to that. We are common men. We only see what is actionable on the ground. I don't expect them to tweet at all. मैंने इसके पहले भी कहा है, हाथी के दांत जो है वो अलग होते हैं, and I stand by that.
मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इम्प्लिसिट ट्रस्ट रखता हूँ सब में, लेकिन छोटी छोटी बातें जो होती है, ऑप्टिक्स मैटर करता है। और आप देखो ना, फॉर इंस्टेंस पंजाब सीएम आते ही उसने डीजीपी चेंज कर लिया अपने हिसाब का। जहां जहां कांग्रेस की नई सरकारें बनती हैं, ब्यूरोक्रेसी को इमीडिएटली ओवरऑल किया जाता है। व्हाई डू दे डू दैट विथ इम्प्यूनिटी? बिकॉज दे हैव अ सर्टेन वे ऑफ फंक्शनिंग, उनका टेम्पलेट सेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें कोई, होम मिनिस्टर इज अ वेरी पावरफुल मैन, उनके उनके अंडर पूरी गवर्नमेंट सरकारी मशीनरी है, एंड टू डिप्लॉय इट कॉन्स्टिट्यूशनली इन सीरियस मैटर्स लाइक दिस इज द लीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट हिम टू डू। उनसे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो मैं दादा से बहुत सहमत हूँ इस बारे में, एंड आई थैंक हिम फॉर सेइंग दिस आउट लाउड। इवन आई थैंक दादा, क्योंकि यू नो दादा की जो एक्सपीरियंस है वो तो हम लोगों को अभी गेन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा उसको। दादा आपका और जेपी का वीडियो ऑफ है। यस रणदीप जी। इस पे ईशा जी, यू नो वी नीड टू ऑब्जेक्टिवली असेस के इसमें हो क्या सकता है। अब इसमें आई थिंक सब हम मान रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ है और ये डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी तो है, बट अगर अब आप देखिए कि जो डीजीपी की जो बात चल रही है, डीजीपी जो है स्टेट का, वो रिपोर्ट करता है होम मिनिस्टर स्टेट को। तो अब ये जहां कॉन्स्टिट्यूशनल बातें आ जाती हैं, वहां पे सेंटर भी बिकॉज ऑफ फेडरलिज्म, सेंटर भी थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है, वो भी रिस्ट्रिक्शंस रहती है उनपे। तो तभी मैं कह रहा था कि अगर तो अब होम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर है चन्नी खुद सस्पेंड कर दे तो ठीक है, और करना भी चाहिए, बट वो कर नहीं रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं, डीजीपी ने तो फॉलो किए हैं, तो वो अभी कर नहीं रहा है। तो इसीलिए ये डायरेक्टली होम मिनिस्टर नहीं कर सकते सस्पेंड, वो किस बेस पे करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि ये ऑफिशियल इंक्वायरी हो जाने दीजिए, ये प्रूव हो जाने दीजिए कि ये डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है और कॉन्स्पिरेसी है या जो भी है, और फिर उसके बाद में फिर प्रेशर आएगा स्टेट गवर्नमेंट पे टू टेक एक्शन। और तब अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर सेंटर कैन गेट इन्वॉल्व। और दूसरी जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ, इनफैक्ट मैं आई थिंक यू नो आई एम मोर इन फेवर ऑफ कंसिडरिंग के प्रेसिडेंट रूल लग सकता है कि नहीं इस घटना के होने से, कंसिडरिंग के ये एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, और जो कल हुआ वो ये दर्शा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही बुरी है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है, मे बी आई थिंक वो ज्यादा फीजेबल होगा। वो एंगल को स्टडी करना उसमें अगेन मैं रणदीप जी सॉरी, I'll stop you a bit. JP has not even given his opening statement. I'll come back to you. JP, yes. A very unfortunate incident happening. But basically, I'm agreeing with Surendra Dada. This 303 is a huge one. Everybody has got strong views. But the problem is they tried upon us with Shaheen Bagh. We gave them the opportunity to sit there for 12. How was removed? Because of COVID. Not of any no laws were put up. Correct? 1.5 years, these farmers were sitting down there on the heart of Delhi, blocking all Delhi roads. How much money is involved into these protests? This huge amount of crowd sitting there, eating there, doing everything, whatever they want. What kind of money is involved? Where do these money come from? Everything is fine. Constitutionally, maybe they are unable to act now. But tell me one thing. Stopping this fund flow is within the rights of the lawmakers. We have raw
We have CBI, we have ATS, we have all the agencies sitting around about with you. What were they doing? Security breach of a prime minister is not a thing. If everything is Punjab police or the Punjab government's fault, what was the RAW doing? When a prime minister is scheduled to go somewhere, intelligence reaches much beyond this. If they had intel inputs, why didn't they stop before? Problem is everything and anything we are also passing the bucks to the Punjab government, na? PM is only for the Punjab government, not for us, not for the entire country, not for the RAW, not for the intel people. Z++ means the home ministry has to be 24/7 into 365 around him. This is a very big failure. This cannot be taken that lightly. We cannot blame it to one person, Channi. He's a makeover CM. Is he a CM material? He's a makeover CM with just because captain has been let down, he has been put up. Why didn't Sidhu become the CM when he did all the work? He's a smart man. He needs dummy there. Rohan Dua has already torn apart in his tweets whatever he has claimed. Channi, I think Samir must have read Rohan Dua's tweets. We cannot let these happen. Yeah, absolutely. Passing these bucks to other people is very easy. Quite true. But again, I will tell you the same thing. Yes, I'm also angry. I'm also anguished. I think everyone, all Modi's supporters are actually taken aback by what has happened yesterday. Ma'am, not angry. You try and understand what happens if something would have happened. That's why I said we are supposed to. What we are supposed to lose, do we know? Do we actually analyze that? Then why don't we go for the home ministry? Why should we go for Channi? I don't understand this. Why every time we are going for the Punjab government? Are we incapable of holding the security of our prime minister? After the inquiry, what will be the fate of the Punjab government? That is different. That is a very, very different issue. That's a secondary issue rather. First and foremost, it's also an intel failure. Try and understand, nobody is against the home ministry or any individual minister who are in charge of this. SPG is capable enough to take him out from there. But why take that chance of even SPG should act to take the prime minister out of his own country? Why let it happen? Why wait? Why let it happen? मैं आज आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ. मैंने इंफॉर्मेशन मुझे मिला है इंफॉर्मेशन, उसमें यह है कि चन्नी जी हैज गिवन अ स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने बोला है कि मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि देयर आर पीपल ओवर देयर 20 to 30 पीपल. इट वाज नॉट अ वेरी बिग क्राउड आल्सो, मगर उन्होंने बोला कि मैंने बोला है, ही हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड इट सीम्स कि भाई प्लीज डू नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दोस पीपल. आप जो जेपी आप जो बोल रहे हो ना कि खाली चन्नी को ब्लेम करना, देखो इंदिरा गांधी and Rajiv Gandhi, we lost 2 of our prime ministers. We lost quite a lot of other big people also. And हर बार ना हमने देखा है कि गद्दारी बहुत तगड़ी गद्दारी हुई है. And कहीं तो अभी तक we are not sure कि what actually had transpired. So जब इंसान की मेरा पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ कि जब इंसान की नीयत खराब हो जाती है ना, उसका इंटेलिजेंस क्या करेगा?
वो उसका आंसर कोई दे मुझे। आज अगर मेरा एट दिस तो- मोमेंट नियत खराब हो जाती है एंड यू हैव एवरी इंफॉर्मेशन अदर देन माय नियत, तो क्या करोगे? नियत काम नहीं आती ना मैम, नियत कहाँ से काम आएगी एट द कॉस्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर? तो नियत ही तो खराब हुई थी ना, जिसने भी लीक किया। मैम आपने जो जो रोहन दुआ के उनका आपने डिटोर रोहन का दुआ जो के लीक पूरे हुआ, ट्वीट्स वो लीक आप हुआ, वो तो हुआ ना। रोहन दुआ के ट्वीट्स नहीं पढ़े आपने? The अगर पढ़े होते Yes. तो चन्नी इज लाइंग, Yeah, he's lying. आप नहीं, He's आप lying. आप भी आप जेपी के आप स्टेटमेंट्स को आप बहुत डीपली से अभिप्राय करना चाहिए, बिकॉज एंड इफ यू अलाउ मी आई जस्ट मेक अ कपल ऑफ क्लोजिंग कमेंट्स बिकॉज इट्स क्लोज टू 5 o'clock, मुझे आई विल हैव टू हेड आउट, बट आई थिंक जेपी हैज रियली हिट द नेल ऑन द हेड इन दिस एंटायर डिस्कशन by getting to the crux of the matter. हम जो बाकी की बातें कर रहे हैं, इंक्वायरी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कौन कल्प्रिट होगा, क्या ब्लेम करना है, क्या नहीं, ये सारा ये दिस ऑल मैटर ऑफ जो अभी हो चुका है इवेंट, इट विल हैपन, नेचुरल जस्टिस या जो जैसे इशू पुश करेंगे, बट इसका मेन मुद्दा वी आर मिसिंग द, वो कहते हैं ना ट्रीज वुड फॉर द ट्रीज या व्हाटएवर, is why did the situation come to this point where such a serious situation, I mean all that we have worked for all these years, the PM has sacrificed days and nights, you know, it would, God forbid, if something wrong would have happened, it's all gone to zero. You see, there is nobody else who can fill those shoes. Why did that happen? Where does the buck stop? We have such massive machinery available at our disposal. Why? And this did not, I'm not talking about this one event, B. Jaise JP ne kaha, this is not about yesterday's event was the culmination of 18-20 months of systematic planning to do something sinister. correct. Why was that not nipped in the bud? Forget nipped in the bud. When it started showing signs of such seriousness, why was it not? I mean, and it's all got to do with money. Nothing of this would have been achieved without the massive financial backing to thousands of people camping outside the city. Unka khana, peena, aisho, aaram, sab kuch. You can't even imagine the kind of money that's coming. Ye kyun check nahi kiya? That is the root. Which JP has absolutely nailed it with precision. यहीं पे मतलब ये मुद्दा है, इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि we want our old home minister back, we want the same MHA that gave us Article 370 abrogation, a clean sweep, you know, where are we? Is it too much to expect these basic things like security of PM? No, it's not. I think that's my honest submission. Aap agar you know, if you permit me, I'm sorry, I'll have to leave right now, but I'll be happy to join again the next time. And Yeah, thank sure, you to sure. all my co-panelists also, Dada, JP Da, and Randeep Bhai. Thank you very much. Thanks, Thanks, Isha ji. Amir bhai. Thank you. Thank you, Samir. Sure, Thank you so Samir, much. and thank you so much for joining us. Dada, my next question to you again. So, Dada, what do you expect? अब आप the Indian citizen, आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा हुआ है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी? What do you want? Dada, can you hear me? म्यूट पे तो नहीं है? हाँ उनको पूछा जी। बोलिए। क्या पूछा दीदी आपने, किसको पूछा? मैंने आपको पूछा कि अभी आप, अब जो हुआ वो तो हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन होना है वो तो होगा, बट एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री आप अभी चाहते क्या हैं? व्हाट डू यू वांट नाउ? व्हाट शुड बी डन नाउ? देखिए दीदी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा दो रकम का होता है।
एक होता है कोई भी हो, एम्प्लॉय हो, बाहर का हो, कोई तीसरा आदमी हो, किससे कोई बड़ी गलती हो गई उस पर गुस्सा करें, और एक जिसको आपने अपना मान के चला है और आपको लगे कि उसका काम हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उसको मन की टीस बोलिए या गुस्सा बोलिए या मन में कुछ असुविधा कि देखो सोचा ये था, ये हो कर नहीं पा रहा है, तो ये वो असुविधा वाली फीलिंग है। अब कैसे वापस पेन पे लावें? एक तो मुझे लगता है लोगों का, अगेन कल से मेरी कम से कम 200 लोगों से फोन पे बात हुई है और वो उसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, आज मेरे व्यूज कम दे रहा हूँ, उनके समरी दे रहा हूँ। एक तो ये है कि कितने दिन आप बोलते जाएंगे कि गांधी परिवार चोर था, 8 वर्ष आपके पास हो गया, आपने क्या किया? एक जो बेल पे है वो भी आपका किया वो नहीं था, सुब्रमण्यम स्वामी का किया हुआ था। तो जी इतनी गड़बड़ की है तो कम से कम कुछ एक्शन मत करो, जेल मत भेजो, वो भी नहीं कहता हूँ, लेकिन उनके भय मन में तो भय पैदा करो कि इफ आई डू समथिंग रॉन्ग अब तो मेरे ऊपर कुछ हो सकता है। राहुल तो इस तरह बात कर रहा है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का बाप हो, कोई वो लैंग्वेज को कोई सपोर्ट करेगा क्या कि पर्सन स्पीक्स लाइक दैट फॉर अ प्राइम मिनिस्टर द वे ही टॉक्स? लेकिन अपने उसको भी सहते आए हैं, क्यों नहीं बीजेपी के सेल के लोग उसके ऊपर कूदते हैं और उसको रास्ते पे आने के लिए बोलते हैं। कांग्रेस के जितने भी हैंडल्स हैं, जैसे कांग्रेस से छत्तीसगढ़, कांग्रेस से हिमाचल, कांग्रेस फलाना, कांग्रेस दिल्ली, कांग्रेस महाराष्ट्र, उनको एक बार आप पढ़ के देखिए, 15 मिनट से ज्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना आपका खून खोलेगा। तो किसी को जवाब नहीं देके बेकार में बात बढ़ा के क्या होगा, तो सुनते जाओ सुनते जाओ। मेरे को खाली एक लास्ट बात आप कहने दीजिए दीदी, रामकृष्ण परमहंस की वो एक कहानी सुनाया करते थे कि एक साधु जा रहे थे, साधु के पास लोग बार बार शिकायत करते थे कि हम वहां जाते हैं शौचालय के लिए और तो वहां झाड़ी के पास एक सांप रहता है, वो हम लोग को काटता है, तो इसलिए हम लोग को बड़ी असुविधा होती है कि शौच में जाने के लिए। तो ठाकुर ने जाके उनको समझाया सांप को कि तुम ऐसा क्यों करते हो? वो कहते हैं कुछ करते हैं, तुम्हारा तो बिगाड़ता नहीं है, तुमको लाठी मारता नहीं है, कुछ करता नहीं है, तुम अपना चुपचाप पढ़ो, तुम्हारा जो काम है वो करो, उनको मत बताओ। उसने कहा ठीक है, आपकी बात सर माथे पे। फिर 2-4-6 महीने बाद गए तो देखे सांप एकदम दुबला पतला बीमार था कि मरे कब मरे अवस्था में थी। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि तुम्हारे क्या हुआ? तो आपने कहा था कि तुम वापस किसी को जवाब मत देना, किसी को काटना मत, तब जो आता है मेरे को लात मार देता है, जो आता है लाठी चला देता है, जो आता है कर देता है, तो मेरी ये हालत हो गई है। तो ठाकुर ने कहा मैंने तुमसे कहा था उनको काटो मत, मैंने ये तो नहीं कहा था कि पुकारो मत, डराओ मत। तो हमारी यह हालत ये हो गई है कि हम कुछ नहीं करेंगे में वो बुरा मान जाए या करें, हम डांटते भी नहीं है और वो खुश होते हैं इस बात पे कि हमको कुछ नहीं कहा जाता है। वो लोग बदले में लिखते हैं कि मोदी जी को पीस नोबेल प्राइज चाहिए, बोल के चुप तो साधु होके बैठे हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं वो भी अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। आपके जो सपोर्टर्स हैं उनके मन में तकलीफें हो रही हैं। We also know कि nobody else will do as much as Modi ji has done. Whoever next comes even from BJP would be not even a shadow of what he is. ये लगता है, लेकिन ये किसके लिए दुखता है? अपने वाले के लिए दुखता है। आज कोई दूसरा होता है प्राइम मिनिस्टर, वो उसकी ये बातें होती तो शायद इतना जी नहीं दुखता। तो समरी ऑफ द टॉक्स दैट आई हैव हैड विद मेनी पीपल यस्टरडे एंड टुडे वो बता रहा हूँ। और तकलीफ की बात का एक ही एग्जांपल दीजिए, लास्ट दे दूं कि जो डिबेट आप आज कर रही हैं वो यदि कल की होती आप तो मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता। वो खबर आने के बाद भी हाल हो गई थी कि कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, जैसे लगता है कि शरीर निडल हो गया है, लगता था ये कुछ गोली हम ही को लग गई है। वो तो शाम के बाद 8-9 बजे के बाद थोड़ा हुआ, तो मन को निकालने के लिए मैंने दोस्तों को फोन किए, लोगों को फोन किए कि शायद कुछ बात करेंगे तो मन इधर होगा।
तो इतना फील हो रहा है. तो आई होप nobody takes what I'm saying otherwise. It is not a criticism of Modi ji or the government. सभी लोगों ये का, दिल सभी की एक लोगों का। आवाज निकल रही है कि अपने वाले के मन में क्या दशा है. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच दादा, आपका तो मतलब पर्ल्स ऑफ विजडम है. रणदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप प्लीज. ईशा जी, एक्चुअली द पॉइंट इज कि हाँ, जो कल हुआ है, ऑब्वियसली ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है ये बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है, और मैं बिल्कुल इसका आदर करता हूँ. जो दादा ने बोला है एकदम ठीक बोला है. लेकिन आई थिंक पॉलिटिक्स में क्या होता है, जब हम डिसीजन लेते हैं ना, तो हमको बहुत डिस्पैशनेटली डिसीजन लेने पड़ते हैं, और स्पेशली अपना अहम और ईगो को कंट्रोल में करके डिसीजन लेने पड़ते हैं. तो अब आप देखिए कि द पॉइंट इज कि हाँ, इमोशनल आउटबर्स्ट तो बहुत हो रहा है, बट करना क्या है ये कोई बता नहीं पा रहा है. देखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ना, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बंधन भी डालता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी पावरफुल, इट एम्पावर्स, बट बहुत बंधन भी डालता है. तो अब या तो हम कहें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं मानेंगे, जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्रिएट कर दी, आप भी इमरजेंसी क्रिएट करो और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो. ये भी कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ट्विटर पे ही बोल रहे हैं, और बहुत ही मतलब मैच्योर लोग बोल रहे हैं ये सब. बट ये इज इट रियली, ये मैच्योरिटी की बात है क्या ऐसे बोल देना? तो मेरे हिसाब से आप देखिए कि अगर आप डिस्पैशनेटली व्यू कर रहे हैं, आज की डेट में जो हमारी इंटेलिजेंस, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल है, इतना पावरफुल हमारी नेशनल सिक्योरिटी कभी नहीं हुई जितनी आज है. ये तो आई थिंक हम सब मानेंगे, और इससे ज्यादा पावरफुल कोई हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई इससे भी बेटर हो सकता है. दूसरी बात जो ये जो बोल रहे हैं कि हाँ, ये 1-1.5 साल से ये चल रहा है प्रकरण, ये पैसा बाहर से आया है. पैसा एक्चुअली बाहर से आया है, कोई उसका नोबडी डिस्प्यूट्स दैट, बट जो मैंने बोला, ये पैसा अंदर से ज्यादा आया है. आप समझिए कि ये पंजाब में, हरियाणा में ये जो रिच फार्मर बेस है, जो टैक्स फ्री, उनको कैश, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई एक गोदान भरे हुए, ये वहां से पैसा आया है. ये कोई बाहर से तो उन्होंने अवार्ड अनाउंस कर दिए कि ठीक है, अगर तुमने वो खालिस्तान का झंडा वहां लहरा दिया, हम तुमको इतने लाख डॉलर देंगे, ये कर दिया, हम ये करेंगे. अरे भाई, पैसा असली तो अंदर से ही आया है. जो आड़तियां थे, आड़तियों मैं तो पहले जो बोला, ये सब अंदर से ये खेल हुआ है. तो ये मैं यही फिर दोहरा रहा हूं कि मैं मानता हूं कि ये जो है, ये जो बात हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. ये इतना आसान नहीं है इसको टैकल करना, और आई एम श्योर कि ये गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली लेगी, और दे विल कम अप विद अ सॉल्यूशन सूनर देन लेटर. तो आई थिंक मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी एंग्विश बहुत ज्यादा है. और लेकिन दादा ने जो एक चीज कही, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, और वो ये है कि जो गांधी परिवार पे जो केसेस चल रहे हैं, जो सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं है, चिदम्बरम के हैं, उनके और लोगों के जो केसेस चल रहे हैं, उस पे एक्शन होना बहुत, आई थिंक उस फ्रंट पे मैं जरूर कटघरे में खड़ा करूंगा सरकार को कि उस फ्रंट पे कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हुआ है जहां पे होना चाहिए था. और क्यों मैं कहता हूं कि ये रूट कॉज जो है सारा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये जो हो रहा है, ये चन्नी के बस की बात नहीं है, ये ऊपर से सब हो रहा है. और वहां पे जो दादा ने बोला कि डर बैठाने की बात जरूरी है, क्योंकि गलत किया है, वो लोग गलत कर रहे हैं, और जहां हमने उनकी नब्ज पकड़ रखी है, उन जगहों पे तो हमको बिल्कुल उनके अगेंस्ट केसेस जितना जल्दी हो सके हमें वो क्लोज करने चाहिए. वो कोर्ट में ले जाके कटघरे में खड़ा करके उनके अगेंस्ट सजाएं जल्दी से जल्दी सुनवाई जानी चाहिए. वो मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ. JP, yeah, we would also love to hear what you have to say. Sorry, मैंने last time कट कर दिया था. मैं भी agitated हूँ, मगर at the same time, जैसे रणदीप जी बोले, मुझे भी ये लगता है कि some people need to be calm also.
Yes, It's JP. not about being. It's not about being calm. It's not about being calm. It's about the materialistic loss India has to face. There are loads and loads of work that has to be done, and this leadership is a gift to our country. Anguish, anger, these are emotions which can always be controlled or not controlled. It is not in our hands. We have to think as a layman. We have nothing to do with in the politics. We are just people who love the leadership. These leaderships are rare. I agree with Dada also. Just by putting down emergencies, president's rule, we will just be going the Indira way. I think is not a very intelligent decision. Lawful way is the right way, but you can always fast it up, swift it up. Why so slow? The Lutyens media, they fire it up. Just imagine one picture they put up with the Galwan Valley, and it was a national news within 2 hours. The army had to put up a picture to counter that. Can you imagine the amount of support they have? 303 versus 50. You can imagine the grassroots support system of the Lutyens which they have. This is my anchor. Absolutely, I agree. And you know, मतलब आज मेरा आप लोगों से बात करके ना मेरे अंदर का जो एजिटेशन था वो काफी हद तक शांत हो गया है। और मैं कुछ पॉइंट्स बोल के मैं खत्म करूंगी। पहली पॉइंट ये है कि आप लोगों ने बोला कि फॉरेन फंडिंग आया था एंड इंटरनल फंडिंग भी हुआ, फॉरेन फंडिंग भी हुआ है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि फॉरेन फंडिंग को रोका गया है। It took a little bit of time, but foreign funding रुक गया है। अगर आप रेफरेंस चाहते हैं तो प्रदीप सिंह जी का वीडियो देख लीजिए, उसमें उन्होंने पूरा बोला है। एंड जो धालीवाल थे, he had come to India and he was sent back from India. एक्शन लिया जा रहा है, गवर्नमेंट नहीं बोलता है। एंड नेक्स्ट आई विल टेल कि जैसे जेपी ने बोला है कि उनका इकोसिस्टम इज वेरी वास्ट एंड वेरी स्विफ्ट, मगर जितने स्विफ्टली वो लोग न्यूज फैलाते हैं उतनी स्विफ्टली वो मुंह के बल भी गिरते हैं। क्योंकि उन्होंने गलवान वैली को जितना जल्दी से उन्होंने पूरा फैला दिया था, उतनी ही जल्दी उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। सेम थिंग हैपेंड यस्टरडे। सुरजेवाला केम एंड ही सेड कि वहां पे 7,000 सीट्स थे एंड 700 लोग भी नहीं थे, इसीलिए मोदी जी ने ये सब किया। एंड देन उसके बाद वीडियोस आए, और जिसमें वीडियोस में हमने देखा कि वहां पे मोदी जी पहुंचने के 1 घंटे पहले के वीडियोस आए, जिसमें देखा गया पूरा का पूरा भरा हुआ था, बारिश था, लोगों ने सर पे चेयर लेके भी बैठे हुए थे, बट दे वर वेटिंग। So Congress was trying, and all its allies were trying their level best to see that somehow they wanted to discredit, but they went overboard. कुछ ज्यादा ही कर दिए हैं। एंड इसका पनिशमेंट, यस, मैं भी चाहती हूँ कि इसका पनिशमेंट उनको जरूर मिले, क्योंकि हमारे पीएम के साथ ऐसा खिलवाड़ करना खाली हमारे पीएम नहीं है, उनके भी है। जाके उनको नहीं मिलना, उनका फोन नहीं उठाना एंड लीक कर देना, एंड वहां पे लोग गए, उनको बोलना कि पुलिस को बोलना 10,000 पुलिस दिया, मगर पुलिस ने वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने बोला था समझा के काम करो। तो ये जो चीजें, मतलब स्टेट विद इन अ स्टेट जो चल रहा है, और स्पेसिफिकली ये कांग्रेस स्टेट्स में जो चल रहा है, ये मैं भी चाहती हूँ। मोदी जी, आप मेरे भी प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी आप मेरे भी होम मिनिस्टर है, आप लोगों के ऊपर बहुत भरोसा है, इसका प्लीज एक्शन लीजिए, एंड इसकी एक्शन लेना ही पड़ेगा आपको। यही रिक्वेस्ट के साथ मैं खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। समीर, थैंक यू, आप चले गए हो, मगर थैंक यू। दादा, क्या बोलूं, आपने मुझे बहुत शांत किया। जेपी ऑलवेज, एंड रणदीप जी, थैंक यू। आपके जैसे स्टॉन्च बिलीवर इन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको बहुत जरूरत है। थैंक यू। एंड श्रोताओं को ये बोलूंगी, अगर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम लोग फिर से आएंगे। काफी हीटेड हुआ, मुझे काफी अच्छा लगा। I learned a lot today. Thank you everyone.
Thank you, ईशा जी. Thank you, Asha ji. Randeep ji is a wonderful person.